Great. Good morning. And today I'm going to cover, I have done a lot of research in the last few years that why do diseases occur, why do aging occur. I also did a program on how to reverse aging. I tried it on myself, my wife, and yes, it did work. People say that we are growing younger, and many other students also. Like literally they get the feedback that they are not aging and reversing their age. I was just trying to summarize my learnings of the past few years, and I found out that there are three main reasons, तीन मेन कारण है बीमारियों के. Okay, हमारी बीमारियां क्यों होती है, हमारी एजिंग क्यों होती है, and why these days diseases like diabetes, hypertension, high cholesterol, all the metabolic syndrome जो हम बोलते हैं cluster of diseases and even cancers, that why are cancer becoming so common. Okay, so any guesses क्या reason हो सकता है, or any word that comes to your mind कि there are three main factors which lead to, yeah, Baljeet aunty. Yeah, lifestyle disease, lifestyle, because of the lifestyle. Yeah, नहीं lifestyle तो है, but I'm asking about this is a medical term. चलिए मैं hint दे रहा हूँ, it's a medical term, not a general term. या प्रिया आपने unmute किया था. Dietary habits. Strong food habits, and especially eating out a lot nowadays, the Zomato, Swiggy culture. Okay, the Zomato Swiggy culture. Okay, let's not use the word culture. Culture is a very deep word. Okay. No Lack of issues. exercises. Lack of exercise is carcinogen. Poonam is saying carcinogen. Okay, but see, yes, you guys are right. Lack of exercise is lack of movement, improper sleep, diet, lifestyle. These lead to something in our body. ये जो आपने बताया ना, ये सब उससे कुछ होता है. जो तीन चीजें मेन है. फर्स्ट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस. मुझे शेयर, अगर स्पेलिंग किसी को चाहिए, just share the word file. मैंने खाली word file सिर्फ टाइप किया है. There are no details as such. So one main reason is insulin resistance. Okay. Second is oxidative stress. And third is inflammation. All three are interrelated, and I would say these are the big elephants in the room. ये तीन चीजें जो है, I repeat, it is one is insulin resistance, second is oxidative stress, and third is inflammation. मैंने inflammation third इसलिए रखा है because of the first two factors, insulin resistance and oxidative stress, the third happens, जो तीसरा होता है inflammation. So I get a lot of cases nowadays of kidney disease, PCOD, diabetes, heart, hypertension. Youngsters में हो रहा है, 15-16 साल के बच्चों में आजकल हो रहा है. All the autoimmune conditions. Cancer has become so common, matlab, these days. One of my relatives got admitted in Bombay hospital just now. 6:30 बजे उनका admission हुआ. It's directly stage 4 cancer. पता ही नहीं चला. Directly he got stage 4 cancer. Why are these becoming so common? So I find out कि let's figure it out. I just went deep into meditation and I took out all my notes and I figured out that these three factors अगर हम control करेंगे ना, एक तो हमारी aging जो होती है, that will start reversing. You will start, literally you can reverse your age. Age मतलब not your chronological age, your biological age. We can reverse that. All the biomarkers of aging. तो क्या कौन बताएगा? What are the biomarkers of aging? कैसे पता लगता है आप aging हो रहा है? How can someone say that you are aging? Come on. Maybe, not rocking. yeah, maybe wrinkles or Wrinkles, yes. Wrinkles मतलब होता है जो हमारे skin में cells है, they start degrading, right? degeneration of cells. Degeneration of cells, yes. But this is one sign of aging. What's the other sign of aging? Yeah, Ekta? Low energy level. Energy levels. Fatigue, yes. There is more fatigue, low energy. Yes, this is one sign of aging. Absolutely right. What are other signs of aging? बाल में क्या होता है? Yeah, hair fall. सफेद, बाल सफेद, graying of hair. Graying of hair. Graying of hair, that is one sign of aging. और क्या signs of aging है? Knee problem. That's not a sign of aging. That's a sign of बोलते हैं. That's like a side effect बोलूंगा मैं. Knee issues जो होते हैं वो. Eyesight. Okay. Sorry, eyesight. Eyesight. Yes, eyesight. You develop cataract. Your eyesight becomes weak. Your most cases blood pressure goes up. Most cases because
मोस्ट पीपल जो 60s में होते हैं, पहले तो आजकल तो 20s 10s एंड 20s में होने लगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट जनरली दीज आर साइंस ऑफ एजिंग। नाउ आप देखेंगे ये सारी चीजें अब यंगस्टर्स में हो रही है। आप नोटिस करिए, देयर स्किन आप देखेंगे ऐसे, इट इज नॉट वेरी हेल्दी। हेयर इज ग्रेइंग मच अर्लियर। पहले 50-60 साल में बाल सफेद होते थे, आज 10-15 सालों में बाल सफेद होने लग गए हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड, ऑटो इम्यून कंडीशन सब बच्चों में हो रहे हैं। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। 10s and 20s में आई गेट गर्ल्स with PCOD, with delayed periods and everything, and all the that is happening with their bodies, that these are not diseases meant to be happening in youngsters. So ये 3 मेन कारण है। So let's talk about insulin resistance today. So मैंने दिया था प्रोजेक्ट, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस ग्रुप somehow for some reason, ठीक है, नहीं किया, it's not compulsory also. It's a slightly difficult topic. It's not a very easy topic. So let's talk about first elephant in the room, insulin resistance. Okay. So insulin हमें पता होना चाहिए एक हार्मोन है। Okay. इंसुलिन एक हार्मोन है जो जरूरी है जीने के लिए, बिकॉज उसके बिना हम जी नहीं सकते। सो डोंट थिंक दैट इंसुलिन इज अ बैड थिंग। ओके। जब भी हम कुछ खाते हैं, ओके, हमारे पैनक्रियास को ये हार्मोन प्रोड्यूस करना पड़ता है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बीटा सेल्स इन अवर पैनक्रियास। ओके, दोस बीटा सेल्स रिलीज दिस हार्मोन व्हेनेवर वी ईट समथिंग। ओके, तो सुबह उठ के, चलो यार, सुबह उठ के जनरली क्या खाते हैं इंडिया में सब? सबसे पहले खाएंगे चाय बिस्किट, या उसके बिना तो पेट साफ नहीं होता है। लिटरली आई डोंट नो एनी रिसर्च दैट इज देयर जो बोले कि यार ये दूध वाली शक्कर वाली चाय पीने से देयर इज समथिंग रिलेटेड टू क्लीनिंग ऑफ योर, बिकॉज सच सो मेनी पीपल आर अंडर दिस, बोलते हैं ना, एक भ्रम है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ कि सबको समझ सके, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि चाय पीने से पेट साफ होता है। ओके, एंड दैट इज लाइक, सबसे पहला हम डाल रहे हैं, चलो दैट्स अ पॉइजन, तो ऑब्वियसली टी बिस्किट आर पॉइजन। देयर आर मेनी रीजंस, मैंने बताया पास्ट में क्यों पॉइजन है, लेट्स नो गो। तो हमने सुबह चाय बिस्किट ली, हमारा बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस किया, ठीक है। फिर हमने 2 घंटे बाद कुछ खाया, नाश्ता किया थोड़ा सा, चलो नाश्ता कर लेते हैं 9 बजे, फिर इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ। फिर यार डाइटिशियन ने बोला हर 2 घंटे में खाना चाहिए, फिर 11 बजे खाया, अगेन इंसुलिन गेट प्रोड्यूस्ड। 1 बजे लंच किया, 3 बजे नाश्ता किया, 7 बजे स्टार्टर लिया, 9 बजे खाना खाया, रात को 11 बजे दूध पी के सो गए। तो व्हाट इज हैपनिंग टू अवर बॉडी, व्हाट हैपनिंग टू अवर पैनक्रियास? पैनक्रियास को बार बार मेहनत करनी पड़ रही है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो क्या आपकी बॉडी में फिर क्या होगा? इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी, आपके ब्लड में जो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब इंसुलिन करता क्या है समझिए आप। हम जो भी खाना खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, राइट? एनर्जी कैसे मिलती है? जो हम खाना खा रहे हैं दैट गेट्स कन्वर्टेड, वो एक कन्वर्ट होता है, देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। द फूड दैट वी ईट गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी, दिस इज मेटाबॉलिज्म। ओके, एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है? जब हम खाते हैं, वो जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, हमारे सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, अवर सेल्स नीड्स ग्लूकोज टू फंक्शन। बट प्रॉब्लम क्या होती है? वो सेल में एक ताला लगा हुआ है। ओके, तो सेल्स ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते रहते हैं, करते रहते हैं। सेल में क्या लगा हुआ है? एक ताला लगा हुआ है। वो ताले की चाबी क्या है, कौन बताएगा? मैंने पास्ट में बताया। हाउ डज दैट सेल ओपन? Insulin. Insulin. Yes. Good budget, auntie. Yes. Insulin is the key to open the door to the cells so that जो एक्सेस ग्लूकोज है हमारे ब्लड में, एक्सेस जो ग्लूकोज, जो हम खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज, उसमें ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं। हम जितनी बार खाना खाते हैं ग्लूकोज बढ़ जाता है। इसीलिए डायबिटीज का टेस्ट जो कराते हैं हम, आप नोटिस करेंगे फास्टिंग में लेवल्स लो आते हैं, एंड पोस्ट लंच या पोस्ट प्रैंडियल जो बोलते हैं वो हाई लेवल आते हैं, राइट? बिकॉज ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। अगर इंसुलिन वो जो चाबी है ताले को नहीं खोल पा रही, तो क्या होगा बताइए आप, लॉजिकली क्या होगा? अगर वो चाबी ताले को नहीं खोल पा रही है तो क्या होगा? ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ जाएगा। यस, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज दैट डिजीज नॉर्मली कॉल्ड? Diabetes. व्हेन यू डायबिटीज। डायबिटीज। सो नाउ गो बैक टू द रीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में कैसे बढ़ी? हाउ डिड इट हैपन? Insulin didn't work. नो, इंसुलिन डिडंट वर्क, बट व्हाई वाज? By eating again and again. Yes. Repeated. See, I'm not asking why insulin resistance is. Priya, my question was that
Why does glucose go up again and again? So eating every 2 hours, frequent eating, is the major reason why your blood glucose goes up. Okay. Now भगवान ने इतना इंटेलिजेंट बॉडी बनाया है कि सेल्स पे हमारे सर्टन रिसेप्टर्स है. सो दीज आर कॉल्ड रिसेप्टर्स. These are called receptors on the cell, which बोलते हैं ना अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं when they come in touch with the insulin. Okay. Now when this receptor stop working, cells में जो ताला होता है, जब वो ताला खुलने के लिए मना करता है कि मैं नहीं खुलूंगा इंसुलिन से, this is known as insulin resistance. Okay, so there is a natural mechanism in our body where our body is very intelligent. Whenever you eat, your glucose goes up, but high levels of glucose is not good. Diabetes के क्या side effects है वो सभी को पता है. We won't go into details. So body ने क्या किया? It produces insulin. कि चलो तुमने कुछ खाया, मैं इंसुलिन प्रोड्यूस करूंगा. एंड वो इंसुलिन मदद करता है वो ग्लूकोज को ब्लड से रिमूव करने में into our cells to be used as energy. Right. So this is where bodies functioning normally. Problem कहाँ होती है? Whenever cells become insulin resistant. Okay, whenever cells become, doctor, please correct me anywhere you feel that I'm wrong. So please feel free to connect me. Any medical term मैंने गलत use कर लिया because I'm not a doctor. Okay. So all good, doctor, till now all good. Yeah, great. So अभी एक प्रॉब्लम ये हो गया कि now अब ताला और चाबी में मिसमैच हो गया. अभी मिसमैच क्यों होता है ये हमें समझना जरूरी है. One reason is frequent eating. Okay. Problem is that there is so much oversupply of insulin because of frequent eating. एक सिंपल भाषा में ओवर सप्लाई जो हो जाता है, योर सेल्स इज लाइक आई डोंट वांट एनी मोर इंसुलिन. उसको पहचानने से मना कर देता है वो. इट्स लाइक पीपल हु स्टे इन धारावी. ओके, मैं नो ऑफेंस टू पीपल इन स्टेइंग इन धारावी, प्लीज डोंट टेक इट नेगेटिवली. Okay, so whenever our car passes by Dharavi, Dharavi is a slum area in Mumbai. चाहे एक छोटा सा सब नोटिस करते हैं फाउल स्मेल जो बॉम्बे में रहते हैं. वी कैन नोटिस अ फाउल स्मेल, राइट? आपको क्या लगता है जो लोग धारावी में रहते हैं वो नोटिस कर सकते हैं उसको? वाई वाई विमल जी ना बोल रहे. विमल जी क्यों वो नोटिस क्यों नहीं करते हैं? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको. सुनाई नहीं दे रहा है मुझे. आपकी ऑडियो प्रॉब्लम है. एनी गेसेस व्हाई One दे आर gets नॉट? get They get adapted used To it. One gets used to it. resistant. Yes. So they become resistant to that smell. So similarly, if we are eating frequently, कि चलो सुबह खाया, दोपहर को खाया, लंच खाया, स्नैक खाया, डिनर के बाद सपर लिया, सपर के, your cells are becoming, because frequent eating is so bad for our health. One of the major reasons. And second is what we are eating. That also is equally important. So yeah, they get habituated to it. Yes. What we are eating. तो आज हम खाना जो ज्यादा खा रहे हैं, that is processed. Processed मतलब क्या आता है? Which is coming from a factory, not from a farm. So this is processed. So that is causing damage. So processed food में क्या होता है? What does that contain? They mainly contain saturated fat. जो animal products हैं, हम क्यों बोलते हैं? Say I'm not here to preach veganism और आपको दूध छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए. That's completely your call. But what milk, what non-vegetarian foods, what processed food, unnatural foods basically, ये क्या कर रहा है? They are very high in saturated fat. And the saturated fat that we eat, that is also a big reason. What I learned yesterday from Dr. Nandita Shah is the reason for, because वो जो फैट की परत हमारे सेल्स पे जम जाती है, फैट की परत जो हमारे सेल्स पे जम जाती है, that doesn't let insulin get into the cells. तो ताले की चाबी बंद हो गई, फैट ने बंद कर दिया, यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट. दिस इंसुलिन रेजिस्टेंट ये मत सोचिए खाली डायबिटीज, दिस किसकी वजह से ओनली आपको डायबिटीज होती है. दिस ऑल्सो इंक्रीजेस जो थर्ड एलिफेंट इन द रूम था. किसी को याद है व्हाट वाज द थर्ड एलिफेंट इन द रूम? इट वाज इन्फ्लेमेशन. So this also creates inflammation. It damages your pancreas. जो बीटा सेल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, that has to work harder and harder. It doesn't understand. चलो मैंने तो मेरा काम कर दिया. See, body is intelligent. जो नेटवर्क है ना, कि when your cells don't get glucose, so certain messengers go in the brain. Cells बोलता है brain को. Cells are telling brain, I'm not getting insulin. I'm not getting glucose. What brain does? It sends signals to the pancreas again. Produce more insulin. Produce more insulin. Produce more insulin. Your pancreas are getting damaged.
See, it's a बोलते हैं ना vicious cycle. You need to understand why frequent eating is bad for us. This modern, I don't know who invented who was that genius who said that we need to eat 8 times in a day to survive. We have evolved for thousands of years as hunters and gatherers, and without any fridge and without any storage mechanism for grains and these things. And who was the genius that I'm very sure it was a food marketing company जिसने अपने प्रॉफिट्स के लिए बोला कि हम दिन में 10 बार खाएंगे तो उनका होगा ना। किसने बोला कि पार्ले जी जी बिस्किट खाने से कोई जीनियस बनता है, या दूध पीने से कोई स्ट्रांग बनता है, या संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। आज क्यों इतनी बीमारियां हो रही है? वी आर नॉट, वी कैन नॉट बी इम्यून टू। अपने घर में ही देखिए, मैं तो बोलता हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, अपने घर में देखिए। आई नो मेनी पीपल हियर जिसके घर में ऑटो इम्यून कंडीशंस है, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, कैंसर्स। मेरे घर में है, इट्स इन माय हाउस। व्हाई लुक फॉर? व्हाई आर दिस हैपनिंग सो कॉमन? बिकॉज वी आर नॉट ईटिंग व्हाट वी आर मेंट टू ईट। हम भूल गए हम क्या है। I met a patient a few days ago, kidney disease. This, I took her diet. मैंने उनका diet लिया. She was eating biscuits, milk twice a day. It's high in protein, high in growth factor, and kidney के जितने लोड पड़ते हैं. She was eating milk, biscuits, रूह अफ़ज़ा, what not. मैं बोला, what are you doing to your body? You're doing exactly the opposite what you need to do. Switch to natural foods and see what happens. Just through affirmations and things, her BP came down, BP normal ho gaya just by relaxing. And I did a session with her to relax her mind, and she was feeling so nice. And her BP came down in 4 days, and it's just a start. And now she's changing her diet step by step. So these unnatural foods that we eat, and what frequent eating, these two are the root cause. हम सोचते नहीं है। See, logically, why we should not drink milk or eat milk products? What do you think? नेचर ने मिल्क क्यों दिया है? इंसान का बात करिए चलिए। एक मदर को मिल्क कब आता है? When does a mother start lactating? When she is pregnant, after pregnancy, after she delivers a baby. तो नेचर ने किसके लिए दूध बनाया होगा? For the baby, right? नेचर ने बनाया for the baby only. लॉजिकली सोचिए। Don't go by science, don't believe me also. So अगर एक काऊ को जब मिल्क आता है तो नेचर ने किसके लिए बनाया है वो? एंड जो हम प्रोटीन की बात करते हैं, जो हम कैल्शियम की बात करते हैं, तो मिल्क में कहाँ से आ रहा है? वो गाय क्या खाती है? व्हाट डज अ काऊ ईट? शी ईट्स ग्रास, राइट? So why can't we go directly to the source to get our calcium and protein? Calcium is a mineral which comes from soil. It doesn't come from milk. We बोलते ना, हम एक भ्रम में जी रहे हैं। हमें बस सिखा दिया गया है एड्स के थ्रू कि दूध दूध वंडरफुल दूध, रोज पियो ग्लास फुल दूध। क्यों इंडिया में इतने ऑस्टियोपोरोसिस केसेस होते हैं? अगर मिल्क में कैल्शियम है, कैल्शियम है, यस डेफिनेटली 110%, देयर इज गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द मिल्क। बट साथ में क्या आता है? इट इज एसिडिक इन नेचर। द एसिड दैट इज देयर इन मिल्क, जो मिल्क में एसिड्स होते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने सिखाया था मेरे सेशन में, ओके, ऑस्टियोपोरोसिस में। व्हाट हैपेंस? इट लीचेस कैल्शियम। उल्टा असर होता है दूध का। दूध का या मिल्क प्रोडक्ट्स का या घी का या छाछ का या पनीर का उल्टा असर होता है। इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, दैट टर्न्स अवर ब्लड एसिडिक। यस, इट रिमूव्स कैल्शियम। जो ब्लड एसिडिक बन जाता है हमारा, बॉडी में एक नेचुरल प्रोसेस होता है उसको एल्कलाइन बनाने के लिए। उसके लिए चाहिए हमारे ब्लड को कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, देयर इज अ कंपाउंड मिनरल कॉल्ड एज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एंड वो ब्लड को मिलता है बोन से। तो इनफैक्ट दैट इज मेकिंग यू मोर वीक। आज कोई भी दूध पी के देर इज नो वन जो मिल्क पी के ओनली कि मिल्क पी के हम पहलवान बन गए या बन गए। इट्स लाइक यू जस्ट कीप ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग, एंड कैंसर इज ऑल्सो अ ग्रोथ। जो कैंसर होता है, सेल्स के जो ग्रोथ होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ ग्रोथ। then that growth is in fact more deleterious to your health. That is even worse for your health. So what's the solution? तो क्या solution है? If you are insulin resistant, suppose now um, you are insulin resistant, so now what's the logical things that you should do to become insulin sensitive? इसका opposite होता है insulin sensitive. क्या करना चाहिए हमें? What should we do? Lifestyle changes. No, first related to diet. I'm asking about diet. Lifestyle changes, yeah, that's a very general term. Not frequent diet. You should Yes. have 3 Stop times. frequent eating. Yes.
You should not eat frequently throughout the day. See, हम जब भी खाते हैं ना, हमारा बॉडी का पूरा मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है. There are certain things get activated in your salivary glands, in your esophagus, in your stomach, in your intestine, in your pancreas, in your liver. Everything gets activated. एंड बार बार अगर कोई गाड़ी का इंजन आप चालू करेंगे ना, वो इंजन खराब होना ही है. अगर सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो फॉर गॉड सेक स्टॉप दिस मंचिंग बिटवीन योर मील्स. इट्स नॉट नेसेसरी. हमारे बॉडी में काफी स्टोर्ड फैट होता है which has to be used as energy, जो हम intermittent fasting में यूज करते हैं. So the number one thing you can do to become insulin sensitive is intermittent fasting. IF is the solution. Absolutely. Don't go for 16-18 hours. जरूरी नहीं है. 12 से 14 घंटा भी अगर आप करते हैं एज पर द सर्कैडियन रिदम. सपोज आपने कल शाम को 7 बजे खा लिया, 8 बजे खा लिया, अभी 9-10 बजे खाइए. इनफ, दैट इज इनफ. यू डोंट नीड टू गो टू एक्सट्रीम्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ इट कि हमें 16 घंटा या 18 घंटा करना ही. इफ यू कैन डू, nothing wrong. Yes, if you can do, yeah, Jainism, yes, but see, I'm not against any isms here because there is no perfect religion, I believe. Religion are just sects कि कुछ लोग ने कुछ फॉलो करना चालू कर दिया and वो बन गया. Let's get the best out of everything. मैं तो ये बोलता हूँ सर. From every religion, from every culture, from every diet, from every theory, let's get the best out of it and form our own culture. हम follow करेंगे अपना एक टिहा का अपना जो follow कर रहे हैं rules and regulations and see how diseases are reversing here. कैसे लोग डिप्रेशन से निकल रहे हैं, कैसे लोग डायबिटीज रिवर्स कर रहे हैं, हाइपरटेंशन रिवर्स कर रहे हैं. ल्यूपस का एक केस था मेरे पास, उनका एल्बो सीधा होने लग गया. मैजिक इज हैपनिंग. मैं तो बोलता हूँ मैजिक इज हैपनिंग. 4 दिन में किसी का अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया जस्ट बाय कंट्रोलिंग द थॉट्स, just by controlling the thoughts. Blood pressure उनका 140 110 था, it came down to 170 just by thoughts, nothing else. It happens because our mind and body are connected. हमें समझना पड़ेगा, minds and bodies are connected. So IF is the number one thing that you can do to become insulin sensitive. अपने आप आपका एक 14 घंटा 13 घंटे का एक पीरियड हो जाएगा जब आप नहीं खा रहे हैं. Your insulin will drop significantly. Insulin will come down. हम नहीं खा रहे हैं and that has a lot of बेनिफिट्स. उसके जो इंसुलिन रेजिस्टेंट सॉरी इंटरमिटेंट फास्टिंग टीम बताएगी हमें नेक्स्ट वीक में. इफ दे आर नॉट रेडी आई विल टेक अप दैट आल्सो. ओके. सेकंड इज डोंट ईट फ्रीक्वेंटली. हर 2 घंटे में खाना हमारे लिए हानिकारक है, आप समझ जाइए. आप हर 2 घंटे में नहीं खाना है. तो व्हाट आई डू, आई नॉर्मली हैव अ ब्रेकफास्ट अराउंड 10-11, lunch around 2, dinner between 6 and 7, done for the day. Nothing else is required. Yeah, Priya, yeah. Yeah, I have a question. Does it go same even for the growing children? Like we generally Absolutely. have a old pattern thinking कि नहीं हर थोड़ी देर बाद बच्चों को कुछ खिला दो, have some fruits, have some snacks. So somewhere it is very embedded, you know, every time the child comes home, we are like, अच्छा बच्चे have something, you know. So does Yeah, it? that is the reason. That is the reason आजकल बच्चों में इंसुलिन, 10 साल के बच्चों में एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक्स एंड डायबिटीज क्यों हो रहा है? सी, बच्चे एंड बड़े में कुछ अंतर मत समझिए बहुत ज्यादा. आप या दे आर ग्रोइंग यस, बट बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ऐसा. बिकॉज फिजियोलॉजी इज द सेम, ऑर्गन्स आर द सेम, एवरीथिंग इज सेम, पैनक्रियाज आर सेम, सब कुछ सेम है. ये हमारा बोलो मेंटेलिटी क्या हो गया खासकर इंडियंस का. अगर कोई अच्छा खासा चौड़ा है ना, ऐसा somebody is like थोड़ा ब्रॉड है तो वो हेल्दी है, एंड कोई मेरे जैसा अगर दुबला पतला हो गया ना, बोलते क्या बात है बीमार हो गए, क्या बात है तुम्हारा बच्चा सूख क्यों गया. और उसको अगर थोड़ा सा डायबिटीज है और थोड़ा सा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, कोलेस्ट्रॉल है, गाल फूले हुए हैं, गला फूला हुआ है, स्वेलिंग है, तो ही इज अ हेल्दी चाइल्ड. दिस इज द प्रॉब्लम विद द सोसाइटी टुडे. सो लेट्स नॉट गो बाय सोसाइटी स्टैंडर्ड्स, लेट्स गो बाय साइंस आल्सो. ओके. एंड बोलते ना जिनके छोटे बच्चे हैं ना घर में या बच्चे हैं घर में, ये ट्राई करके देखिए आप, तो उनकी एनर्जी लेवल बढ़ती है कि कम. भैया सी, अ चाइल्ड, एक मिनट. एक बच्चे को सुबह स्कूल जाने के पहले पूछे तुम्हें कुछ खाना है, बच्चा क्या बोलता है नॉर्मली? व्हाट डज अ चाइल्ड से? no no No. no 99% ऑफ टाइम चाइल्ड विल से नो, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं. हम बोलते खा के जा वरना मेरा पोता मेरे घर में होता है, वो कमजोर हो जाएगा. मैं बच्चों का स्टॉप कराता हूँ. मैं, मेरे पास जो आते हैं ना 15-16 साल वाले, उनका स्टॉप कराता हूँ स्कूल के पहले. आप कुछ मत दो, डायरेक्टली उसको आप ब्रेक में खाने के लिए दो. आफ्टर 15 डेज कम टू मी, अरे एनर्जी लेवल बढ़ गई उसकी. लोग से तो ऑपोजिट, एनर्जी लेवल बढ़ गई, फटीग दूर हो गया, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है बॉडी में अपने आप. उनका इन्फ्लेमेशन कम होता है, एल्बो सीधे होने लगते हैं. मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बोलता हूँ क्या किया मैंने, खाली ब्रेकफास्ट आपका बंद करवाया. जो अर्ली मॉर्निंग आप खाते थे, यू स्टार्टेड डूइंग सम फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड अपने आप इन्फ्लेमेशन गायब, ल्यूपस गायब, आर्थराइटिस गायब, पेन्स गायब होने लगते हैं, एनर्जी बढ़ने लगती है, ब्लड शुगर नीचे आने लगता है.
So this is a myth. This is a myth, Priya, which has been sold to us by food marketing companies mainly to sell their products because हम अगर खाएंगे तो उनका प्रॉफिट्स बढ़ेगा. फास्टिंग से या कम खाने से उनका नुकसान है. ओके उनका नुकसान है. तो मैंने अभी जैसे 15 सालों से दवाइयां नहीं ली तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का कितना लॉस हुआ. मैंने इतने सालों से प्रोसेस्ड फूड नहीं खाया तो उनका कितना लॉस हुआ. तो इट्स अ ट्रिक. जैसे किसी ने बोल दिया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट अटैक होता है तो कितने लोग अब डर से नहीं करेंगे. तो दीज आर ऑल पेड स्कैंडल्स जो हमें फंसाया जा रहा है. दीज आर पेड स्कैंडल्स. उनके स्पॉन्सर्स भी मालूम है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का स्पॉन्सर कौन है? केएफसी होते हैं. केएफसी ऑफ द वर्ल्ड. दे स्पॉन्सर cancer associations and heart associations. So what will they do? They are pressurized to publish these reports, but we stop using our own brains. See, you have to understand our design, how human beings evolved over so many years. पहले तो फ्रिज होता ही नहीं था. Okay, these kind of agriculture was also not there. So much of grains that we eat, it was not there. We were just eating all the natural stuff that used to come. जो हमें मिल गया हमने खा लिया. 2-2 दिन तक लोगों को खाना नहीं मिलता था, कोई मरता नहीं था. Okay, so it's बोलते हैं ना कि let's start using our logic even with kids. Yeah, Divya, Bhabhi, you were saying something. Yeah. मैं उसी बारे में बोलना वाली थी जो उन्होंने पूछा ना बच्चों को देना चाहिए नहीं. मैंने सेल्फ एक्सपीरियंस किया अभी 2 महीनों में. बच्चों को कम दो, ब्रेक पे भी नहीं दो, और बच्चों को भी इवनिंग को मैं मेरे दोनों बच्चों को 6:30 by 7 o'clock डिनर करवा देती हूँ. मैक्सिमम टाइम 90%, अगर हम बाहर नहीं गए हैं तो कुछ भी से. दे आर वेरी गुड और नाउ दे विल बिकम मोर एनर्जेटिक एंड हेल्दी, व्हाट आई फील बाय अ मदर. And our weight has also come down. Ritesh was telling me, Ritesh is my cousin Divya's husband. He told that his elder son was slightly overweight. His weight naturally came down by Yeah, 7 to he 8 comes kgs. to all the matlab the machine you told na to bring, he was matlab the perfect in my house according to that weight machine. His fat, his BMI, his weight and everything is a perfect for his age. Superb. Great. Congratulations, Divya Bhabhi, for the Uh, change. And I Manish, appreciate I just Mohak want, also. I appreciate her son Yeah, also. yeah, it's Uska, Mohak effort. It's not my. it's his effort, but yeah, you as a mother, like you were the catalyst. कि आप classes चालू करके उसको सुनाते हो. So what he is my nephew. What he does ना, he listens to my concept classes. her mother उसको on करके छोड़ देती है and बच्चा सुनते रहता है. और सुन के ये poison है, वो poison है, वो बेचारा डर से खाना बंद कर दिया उल्टा सीधा सब. And naturally उसका weight, fat percentage, BMI सब normal हो गया आपने. Yeah, Ekta, your last yeah, question, Manish, then we start with exercises. yeah, I just want to ask you one thing. Like, if you are doing IF, if you are having your breakfast 10 o'clock or 11 o'clock in the morning, then you don't feel like having lunch at 2 o'clock. It's so early. Then you don't feel like having dinner at 6 o'clock or maybe 7 o'clock. It's too early. I mean, we are full. We need time in between the meals. Then in Absolutely. that case, what to do? Can we skip one meal? थोड़ा सा reduce your caloric intake. ब्रेकफास्ट में जो आप कैलोरीज खा रहे हो ना, तो आप इफ यू आर ईटिंग दिस मच तो थोड़ा सा कम कर दो तो आपको लंच में अपने आप भूख लगने लगेगी. और ईट ट्वाइस अ डे, or eat maybe twice a day. That is in fact one of the best. I'm not going to extremes here because that is not practical for everyone. अगर कोई कर सकता है ना, eat at 10, eat at 6, done for the day. मेरे लिए practically possible नहीं. I don't know why my body needs 3 times a day, but most of the people who live 100, 120 years now, they eat only Acha, twice yeah, a day. I normally do this thing only. I used to have brunch and then I used to have my dinner. I Dinner. take That's one meal, maybe dinner or maybe lunch or maybe yes. breakfast. Yes, that is Because also good enough. That, but make sure to get a good amount of all the macro and the micronutrients. So your food needs to be very, very nutritious because वो nutritional deficiency भी नहीं होनी चाहिए. So we need to be during careful. lunchtime, I used to have just dal, sabji, curd, this thing, not the carbs, not the chapati or something like that. See, everything has carbs. Whatever you eat, na, everything has carbs. Even dal has carbs. Even salad has carbs. So don't say that you're not eating carbs. But yes, see what I say, na, fiber को एक include करो. Make fiber a major portion of your meal. Because that is what we are meant to eat. Fiber comes from raw foods. जितना आप raw खाना खाएंगे उतना आप healthy रहेंगे. तो try 50 to 60% of your diet should be raw. तो मैं जैसे खाना खाता हूँ ना, मेरा सैलेड का मैं इसलिए फोटोज डालता हूँ कि it's a big portion of my meal. Sometimes that is the only meal that I have, a big portion, because that contains all the phytochemicals, all the phytonutrients and all the flavonoids and all the antioxidants and सब कुछ उसमें मिल जाता है. और उसमें मैं healthy fats डालता हूँ, avocado dressing and all the dressings that I put. So fats मिल गया मुझे, protein मिल गया मुझे, carbohydrates मिल गया. So I'm getting all the macro and the micronutrients.
So make major portion of your meal should be fiber. अगर fiber नहीं जा रहा है, yeah, I would suggest exclude the curd part of it. That is actually not required for us. That is causing more damage. Your blood pressure will reverse. Your hypertension, that will reverse in 3 to 6 months. I can guarantee that. If you stop animal products, if you start intermittent fasting and moderate your exercise, एकता, your blood pressure will go away. जैसे काफी students का already हो चुका है यहाँ पर. Okay, so let's not go into details of the diet today, but clear everybody what is insulin resistance and how to become insulin sensitive again. Don't eat frequently, follow intermittent fasting, eat more of natural raw foods, more of, not 100%. I'm telling, cooked is not bad. ऐसा मत समझिए कि cooked खाना में आज से बंद कर देना है. I am not in favor of any extreme diet. Diet ऐसा follow करिए जो आप लाइफ टाइम सस्टेन कर सकते हैं. न्यू तरुण आप नई ज्वाइन किए हो आज, प्लीज डोंट गेट ओवरवेल्म. देयर इज अ प्रोसेस टू इट. हम सिखाते हैं सब, एक एक डिटेल में जाते हैं. देयर आर डाइटिशियंस, देयर आर न्यूट्रिशनिस्ट, देयर आर पीपल लाइक अंशु, रीटा भाभी, अंजना आंटी, पूजा, जो गाइड करने के लिए आपको हमेशा दे आर एवर रेडी टू गाइड यू. या बलजीत आंटी, लास्ट क्वेश्चन प्लीज. वी नीड टू स्टार्ट एक्सरसाइजेस नाउ. ऑलरेडी आगे भाग I गए. just wanted to know जो रेसिस्टेंस है ना, वो मेरे माइंड में समझ नहीं आया एग्जैक्टली स्पीकिंग. व्हेन कब जाके इंसुलिन रेसिस्टेंस, कैन यू रिपीट वंस इफ यू डोंट माइंड? मतलब यस, चलिए लास्ट फटाफट क्विकली. हम जो खाना खाते हैं वो खाना एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर. खाना जो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कैसे होता है? जब हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज घूम रहा है, जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूम रहा है, वो हमारे सेल्स में अब्सॉर्ब हो जाना चाहिए. एक तरह से हमारे सेल्स उसको खींच लेते हैं, तो हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है बॉडीली फंक्शंस करने के लिए. पर वो सेल्स में एक ताला लगा हुआ है. ओके, सेल्स में एक ताला लगा हुआ है जिसकी चाबी है इंसुलिन. अब वो ताला और चाबी का मिसमैच हो गया, आप समझ जाइए कि मेरे घर की चाबी से आप अपने घर का ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो एक तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया कि उसका काम है, चाबी का काम है ताले को खोलना, बट वो मिसमैच हो गया है. वो कोई किसी वजह से वो मिसमैच हो गया है कि वो ओपन नहीं हो पा रहा है. एक कारण उसका ये है कि हम बार बार जो खाना खाते हैं उससे इंसुलिन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सेल्स खुद ही पहचाना बंद कर देते. भैया मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे नहीं चाहिए आप. Okay? ये बहुत फ्रीक्वेंट ईटिंग बहुत बड़ा कारण है. और जो हम सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं, जो मैं दूध, दही, पनीर, मीट, या फ्राइड फूड्स, या प्रोसेस्ड फूड, या फैक्ट्री में बनी हुई चीजें जैसे मैगी हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया. रूह अफ़ज़ा आ गया तो कोई नया आ गया तो मैं चेंज हो जाता है. पापड़ भुजिया भी आउट हो गया, पंकज भैया नहीं है तो बना पापड़ भुजिया भी ऐड कर देता मैं. आई जस्ट कीप एडिटिंग माई क्लासेस एज पर माई स्टूडेंट. बेसिकली हम जितना कचरा खा रहे हैं ना, जितना जंक फूड खा रहे हैं, आउटसाइड फूड खा रहे हैं, दैट इज हाई इन सैचुरेटेड फैट. सैचुरेटेड फैट बहुत बड़ा कारण है. जैसे दूध में बहुत ज्यादा होता है सैचुरेटेड फैट, घी में बहुत ज्यादा होता है, पनीर में ज्यादा होता है, और नॉन वेजिटेरियन फूड में सुपर हाई इन सैचुरेटेड फैट. उससे एक परत जम जाती है हमारे सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो, जैसे समझिए ना, ताले में जैसे होल होता है, चाबी में होल होता है, इसमें ताले में होल होता है ना, उसको आप वैक्स से कवर कर दीजिए तो चाबी अंदर जा पाएगी नहीं. तो ताला हो गया हमारा सेल, वैक्स हो गया सैचुरेटेड फैट, चाबी हो गई इंसुलिन. ओके, तो ताले का होल हमने बंद कर दिया, चाबी अंदर नहीं जा पा रही, तो घर नहीं खुलेगा. घर नहीं खुलेगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे इन्फ्लेमेशन होगा, जिससे बीमारी होगी. आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट वे वन कैन एक्सप्लेन Thank you insulin so much. resistance. Thank you, Baljeet aunty, for asking. Thank you.